Hello friends, welcome to my YouTube channel Care Tax. So hope you all are doing well. So today we will be discussing on an important topic under the Companies Act, basically an internal financial controls, which has been defined under Section 134 of the Companies Act. So we'll start with the definitions first and then see the requirements for statutory provisions under the Companies Act and the various responsibility cast upon the various management authorities. So let us start. So if you see, the internal financial controls are defined under section 134(5)(e) of the Companies Act. As per the said section, the internal financial controls means the policies and procedures which have been adopted by the company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to its company's policies. Second, safeguarding of its assets, prevention and detection of frauds and controls. Fourth, accuracy and completeness of accounting records. And fifth, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का मतलब ये हो गया कंपनी का वो पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स बाय विच वो अपने ऑपरेशंस को ये इंश्योर करना चाहेंगे कि उसमें कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है. अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो पकड़ में आ रहा है, उसका एसेट्स को कोई हानि नहीं हो रहा है, और बिजनेस जो है विथ ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इज गेटिंग डन. ओके, और टाइमली प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो रहा है और कंप्लीटनेस है उसमें, और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन रहे हैं दैट इज रिलायबल. सो इफ वी so basically these are the policies and procedures which is laid down by the company to ensure these 5 things. Okay, so now we will see the internal control over financial reporting. So basically internal controls over financial reporting has not been defined under the Companies Act 2013. It has been defined in the guidance note issued by the ICI. So basically what does it means? So जैसा कि आप देख रहे हैं कि it means it is the process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of the financial reporting and the preparation of financial statements for external purpose in accordance with the generally accepted accounting principle. राइट. सो जैसा कि नाम यहाँ पे बता रहा है कि इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब जो भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए जो कंट्रोल्स आप लगाए हुए हैं, सो दैट कंट्रोल्स इज बेसिकली टू इंश्योर द करेक्टनेस इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. ओके, तो कंपोनेंट्स क्या क्या है ICFR को? कंपोनेंट्स जो है वो है इसके 3 कंपोनेंट्स है. एक है मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, second authorization of records in accordance with the gap, and third is safeguarding of the assets of the company. Hence, to put it simply, IFC is a concept which is much wider than the internal control over financial reporting. So IFC जो है is basically at business level होता है, but internal control over financial reporting जो है it's just focuses on the financial statements. मतलब financial statements का करेक्टनेस कहाँ तक है, it focuses on that only. उसका जो 3 components है कि भैया जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं वो करेक्ट है, जो एंट्रीज बुक्स में हो रहे हैं दैट वो करेक्ट है, कंप्लीट है, एक्यूरेट है और प्रॉपरली ऑथराइज्ड है, और थर्ड है कंपनी को कोई एसेट्स पे हानि नहीं हो रही है. सो इसीलिए इसका जो वर्जन है दैट इज क्वाइट लिमिटेड, बट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल स्प्रेड्स ओवर ऑल द एरियाज ऑफ द बिजनेस. इट विल स्प्रेड टू द सेल्स, मार्केटिंग, परचेजेस and even inventory. Everywhere there will be internal financial controls. So if we look at the definitions of internal controls, मतलब internal controls का अगर आप definition देखेंगे तो internal control में जैसे आप देखेंगे तो इसमें क्या है, internal controls are the processes designed, implemented and maintained by those charged with the governance, management and other personnel to provide reasonable assurance about the achievement of entities' objectives with regard to reliability of the financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of assets and compliance with applicable laws and regulations. So internal controls जो है वो क्या है? So it's basically a policy and procedure which has been established by the management and those charged with the governance and even other personnel to ensure the correctness of the financial reporting so that it can be relied upon by the other users, effectiveness and efficiency of operations in the business, safeguarding of assets and compliance with applicable laws and regulations. So इसमें क्या है कि the internal definition of internal controls is wide enough. So it
captures both the internal financial controls and the internal controls over financial reporting. So the definition of internal controls is quite wide. इसमें आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कैप्चर हो जाएंगे, इसमें आपका फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी कैप्चर हो जाएंगे, प्लस इसमें ऑपरेशंस कंट्रोल्स भी कैप्चर हो जाएंगे, राइट. सो अगर आप देखेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बेसिकली किस चीज़ को पकड़ता है, वो है तीन चीज़. एक है इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो कि हमने डिस्कस किया, सेकेंड है ऑपरेशनल कंट्रोल्स, थर्ड है एंटी फ्रॉड कंट्रोल्स. सो बेसिकली इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का जो कंपोनेंट्स है ये तीन है, ICFR, ऑपरेशनल कंट्रोल्स प्लस एंटी फ्रॉड कंट्रोल्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड थर्ड इज द इंटरनल कंट्रोल्स, राइट. अब हम लोग मूव करेंगे जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस प्रोवाइडेड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, राइट. मतलब किसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड व्हाट दे हैव टू रिपोर्ट, राइट. सो पहला है सेक्शन 134(5)(e) में डिफाइन किया गया डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. तो डायरेक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डालने का कि भैया उसको लिखने ये बताना पड़ेगा कि दे हैव लेट डाउन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड दैट इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. तो मतलब ये चीज़ उनको कंफर्म करना पड़ेगा कि भैया हमने अपना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का डॉक्यूमेंट ले डाउन किया हुआ है, उसमें पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बताया हुआ है, एंड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो है वो सही से चल रहा है और ऑपरेट भी कर रहा है. तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू स्टेट. और ये जो है सारे लिस्टेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है. सेकेंड हम जाएंगे सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. उसमें बोला गया ऑडिट कमेटी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला हुआ है. सो ऑडिट कमेटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे शुड एवेल्यूट IFC एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स, कॉल ऑन द ऑडिटर्स टू कमेंट ऑन IFC, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज हैविंग एन ऑडिट कमेटी. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने IFC को ले डाउन किया है उसको ये लोग जस्ट एवेल्यूट करेंगे कि IFC इज कंप्लीट, एडिक्वेट एंड रिस्क मैनेजमेंट को मतलब कैप्चर कर रहा है, एंड देन they will also ask the auditors to evaluate the effectiveness of the IFC. थर्ड आते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किया हुआ है IFC के रिगार्ड में. सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेक्शन 149 के हिसाब से बताया गया है. उसमें बोला गया है कि दे शुड सेटिस्फाई देमसेल्व्स ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड दैट फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड सिस्टम रिस्क मैनेजमेंट आर रोबस्ट एंड डिफेंसिबल. मतलब उनको दो चीज़ देखना है, एक तो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट करवा रहे हैं यूजर्स को या स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को, दोज आर करेक्ट, एक्यूरेट, एंड सो दैट इट कैन बी रिलाइड अपॉन बाय द यूजर्स और द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़. एंड जो आपने मैकेनिज्म्स डिफाइन किए हुए IFC के, दोज आर रॉबस्ट एंड आर ऑपरेटिंग परफेक्टली. सो ये चीज़ होना चाहिए. ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सो दिस रेगुलेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एंटिटीज हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. अब हम देखेंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट. सो ऑडिटर्स का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिखाया गया है कि ऑडिटर्स हैव टू रिपोर्ट वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल एंड द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल्स, एंड दिस विल अप्लाई टू ऑल द कंपनीज बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड. सो ऑडिटर्स के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है. उनको ये स्टेट करना है कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो एडिक्वेट है कि नहीं, एंड वेदर दे आर ऑपरेटिंग परफेक्टली और नॉट. तो इन दोनों के ऊपर ऑडिटर को कमेंट करना है. उसके बाद आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में भी आपको डिटेल्स देना है एडिक्वेसी फाइनेंशियल कंट्रोल का विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. So this is basically with focusing on the internal control over financial reporting. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में भी ये मेंशन होना चाहिए कि whether as per them whether the internal financial controls are complete and it is operating effectively or not. So this is also applicable to all entities whether it is listed or unlisted. So आपको देखना है कि यहाँ पे हर एक सेक्शंस जो कि मैनेजमेंट से चार्ज किया हुआ है और रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस और तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला हुआ है, एंड दे नीड टू इंश्योर
that the IFC has been laid down by the company properly and those are operating effectively to ensure the 5 objectives that we have already discussed. now see the note below, वहाँ पे लिखा हुआ है Section 143(3)(1) of the Companies Act 2013 shall not be applicable for those audit reports of private limited companies or one person which has annual turnover of less than 50 crores or has aggregate borrowings of less than 25 crores. ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि IFC का जो क्लॉजेस है दोज विल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और 1 पर्सन कंपनी जिसका टर्नओवर जो है 50 करोड़ से नीचे है या बोरोइंग्स जो है वो 25 करोड़ से नीचे है, राइट. So these are basically an exclusion or exception under the IFC. So now moving to the next slides, वहाँ पे हम देखेंगे कि लिस्टिंग एग्रीमेंट में क्या कहा गया है, what are the responsibilities placed upon the company and its management, और what are the benefits of our internal financial control system, and जब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का जो इफेक्टिवनेस है वो ऑडिटर्स की स्टेट में रिपोर्ट करेगा, ओके, और whether internal financial controls are applicable in case of interim financial statements or not, so वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे. So first is applicability of reporting on IFC in case of interim financial statements. तो यहाँ पे कहना है कि we discussed कि internal financial controls का जो रिपोर्टिंग है वो ऑडिटर को करना पड़ेगा, ओके, बट वेदर इट कौन सी ऑडिट रिपोर्ट को अप्लाई करेगा, वेदर इट शुड बी ऑन क्वार्टरली, वेदर इट शुड बी ऑन हाफ ईयरली और वेदर इट शुड बी ऑन एनुअल बेसिस वाले रिपोर्ट में. सो मैनेजमेंट यहाँ पर कहा गया है कि ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल financial requirement specified in the companies and therefore will apply only in case of reporting financial under the Act and report under Section 123. तो इसमें कहा गया है कि accordingly reporting on internal financial control over financial reporting will not be applicable with respect to internal financial statements. यहाँ पे वेरी क्लियरली कहा गया है कि भैया जो रिपोर्टिंग है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ICFR का, वो रिपोर्टिंग आपको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए नहीं करने हैं सच एज क्वार्टरली हाफ ईयरली रेगुलेशन, अनलेस वो कोई और लॉ में या रेगुलेशन में प्रोवाइड किया हुआ है तब जाके ही आपको करना है. अदरवाइज कंपनी एक्ट के हिसाब से आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को सिर्फ फाइनल रिपोर्टिंग ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही आपको रिपोर्ट करना है. अदरवाइज रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट इट फॉर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ऑडिटर इज ऑडिटिंग द IFC रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स कंप्लीटनेस. किस डेट का रिक्वायरमेंट देना, सपोज एक फाइनेंशियल ईयर है, आज के दिन में हो सकता है कि देयर इज अ कंप्लीटनेस ऑफ IFC, बट एट द ईयर एंड इट मे हैपन कंप्लीटनेस ऑफ IFC नहीं है, राइट. सो 57 सो बेसिकली इसमें बताया नहीं गया है कंपनीज एक्ट में कि कब ऑडिटर को ये इफेक्टिवनेस देखना है, बट यस ये कार्बन रिपोर्ट में बताया गया ICAI के कि सिंस ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू बेसिकली रिपोर्ट द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट. बेसिकली जब वो बैलेंस शीट को रेडी कर रहा है या सर्टिफाई कर रहा है उस दिन उसको देखना है कि वेदर एज पर देम द IFC इज देयर और नॉट, वेदर इट इज ऑपरेटिंग और नॉट, एंड वेदर द इफेक्टिवनेस इज देयर और नॉट. तो ये तीनों चीज को वो देखना है जब एज ऑन बैलेंस शीट डेट. दिस हैज बीन टोल्ड बाय द ICAI इन देयर कारो रिपोर्ट, राइट. सो नाउ मूविंग टू द एडवांटेजेस ऑफ अ रोबस्ट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम. सो एडवांटेजेस क्या होगा इफ यू हैव अ रोबस्ट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम ऑफ इन योर कंपनी. सो ऑब्वियसली देयर विल बी management accountability of a management will have to take accountability for anything that happens wrong in the company. उसके बाद इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज इन योर कंपनी. सेकेंड, इट विल ऑल्सो प्रोमोट द culture of openness and transparency within the entity. Then it will also bring the accountability of operations management, and it would also result in the accurate and reliable financial information जो कि users trust कर पाएंगे. So there are lot of advantages and benefits of internal financial controls. आपका मैनेजमेंट अकाउंटेबल हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी आता है,
कल्चर ऑफ ओपननेस आता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आता है, ऑडिट्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव हो जाते हैं। सो यहाँ पे क्या है, सिंस IFC मेक्स रिस्पॉन्सिबल ईच एंड एवरी पर्सन हु आर टेकिंग केयर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल कंट्रोल्स इन द कंपनी, उस सारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया है कि भैया you have to state whether the IFC is there or not, whether it is operating effectively or not, and then if anything wrong goes then you have to take responsibility of it, right? So ये तीन हमने देखा जो सेकंड वाले जो राइट साइड में अपने डिफाइन किया। नाउ वी विल कम टू दी लेफ्ट हैंड साइड कि ऑडिटर्स का जो रिपोर्टिंग है वो सिर्फ फाइनेंस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। सो ऑडिटर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेदर इट इज रिलेटेड ओनली टू रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन केस ऑफ स्टैंडर्ड बैलेंस शीट्स और वेदर इट कवर्स द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो सेक्शन 129(4) ऑफ द कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि अगर होल्डिंग कंपनी पे अप्लाई कर रहा है मतलब दिस डोंट ओनली अप्लाइज टू द स्टैंडर्ड बैलेंस शीट ऑफ द होल्डिंग कंपनी बट इट ऑल्सो अप्लाइज टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। मतलब जितने भी कंपनीज आपके ब्रैकेट कंसोलिडेटेड हो रहे हैं आपके बैलेंस शीट में, वो सारे कंपनीज को आपको एक करके देख के बताना है कि वेदर द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर देयर और नॉट, वेदर इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, एंड वेदर एनी चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड और नॉट। सो ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टोटल एज अ होल है, राइट? अब लिस्टिंग एग्रीमेंट में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स दिया हुआ है क्लॉज 49 में विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड इट हैज कास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन द CEO एंड CFO टू मेंटेन इंटरनल कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, evaluate the effectiveness of the internal control system and indicate to the auditors and audit committee significant changes of accounting policy. So यहाँ पर भी if you see there is a responsibility cast upon the CEO and CFO with respect to IFCs, right? So now we look at how to implement internal financial controls in the company. So as you see, whenever you want to implement something new in your company, okay, you need to assess कि आपका current status क्या है internal controls का, and whether your present internal controls requires any change, and what are the changes you require, where the changes you require, so that you have to ascertain first. Then आपको जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट वेदर योर इंटरनल कंट्रोल्स आर मीटिंग दोज रिक्वायरमेंट्स और नॉट, एंड देन you have to define the internal financial controls in various areas and then take approvals from those controls from your management and then define the control objectives. So you have to define control objectives and control activities to mitigate all the areas of risk where you think that वहाँ पे एक रिस्क है, राइट? उसके बाद आपने डिफाइन तो कर दिया एंड देन इम्प्लीमेंट भी कर दिया, देन यू हैव टू कंटिन्यूसली मॉनिटर कि वो जो इफेक्टिवनेस है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड देन यू हैव टू टेक एन एश्योरेंस फ्रॉम द ऑडिटर दैट योर इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग फाइन, योर इंटरनल कंट्रोल्स आर कंप्लीट, योर इंटरनल कंट्रोल्स आर एबल टू इंश्योर दैट your financial reportings are happening correctly, right? So now we move to the integrated audit meaning. So integrated audit, the auditor expresses opinion on the following aspects: opinion on internal financial control, financial requires auditing, and opinion of the accuracy and the effectiveness of the entity's system of financial control, and opinion on the financial statement. तो बेसिकली अभी तक जो हमने डिस्कस किया वहाँ पे भी अभी वही फोकस है कि भैया आप बताइए कि उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है कि नहीं IFC का. So that is the major requirement. This is the entire information on the internal financial controls. So इसमें आपने देखा कि first we learnt about the definitions of internal financial control, then the internal financial control of financial reporting, and then the internal controls and the components of the internal financial controls and the requirements of the law on the various authorities of the companies and the auditors to report on various aspects of IFC. Then हमने देखा कि कहाँ एक्सेप्शन है 1% कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को टर्नओवर के रिगार्ड में. देन कंपनीज एक्ट लिस्टिंग एग्रीमेंट जो है वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है CFO और CFO टू कंप्लाई विद द IFC. देन ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टू रिपोर्ट ऑन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द होल्डिंग कंपनी, एंड ऑल्सो
and the operating effectiveness of the IFC to be evaluated by the as on balance sheet date. And then we also saw the advantages and benefits of the internal financial controls. So I hope कि ये जो आपको presentation है internal financial control, this will be very useful to you, and as a business you should take care of putting a internal financial controls in your company, not for only the government regulations but for your own benefit also. Hope you will find this presentation very useful. In case of any issue, any clarification, please get back to me at my YouTube channel, or you can log into my website caretech.co.in. Thank you.